کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ امریکہ کی تقریب رونمائی امریکی ریاست نیو جرسی میں انعقاد پذیر ہوئی۔ تقریب کا اہتمام نیو جرسی کی معروف کاروباری شخصیت محمد حمزہ نے کیا۔ تقریب میں نیو جرسی کی پاکستانی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سید ایاز حسین شاہ نے سر انجام دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین کورٹ چودھری محمد اختر تھے، جبکہ سی ای او کورٹ ثاقب جاوید راجہ، سینئر صحافی عتیق احمد سدوزئی، محمد عثمان فاروق قریشی، محمد عبداللہ ظہیر قریشی بھی ہمراہ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اختر نے کورٹ کے پس منظر اور پروجیکٹ سے شرکاء کو بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کورٹ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر میں سب سے بڑا اسپتال تعمیر کے مرحلے میں ہے۔ 500 بیڈ اسپتال میں صحت کی جدید سہولیات ہر شہری کو دستیاب ہوں گی۔ آزاد کشمیر بالخصوص ایل او سی کے مکینوں کے لیے آزاد کشمیر میں علاج کی سہولت نہ ہونے کے باعث لوگوں کو راولپنڈی ریفر کیا جاتا ہے۔ بروقت علاج نہ ہونے سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارا خواب ہے کہ میرپور میں انٹرنیشنل لیول کا ایسا اسپتال بنے جہاں علاج کے تمام سہولیات میسر ہوں۔ وہیں میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، نرسنگ کالج سے ہمارے بچوں کو جدید تعلیم بھی ملے۔ مکمل تفصیل جانیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ محمد عبداللہ بھائی ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے لیے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ادارے کے چیئرمین چودھری محمد اختر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ جو کام ان کا ہے وہ آپ نے یا تو اس سے پہلے دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو وہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو پاکستان جاتے ہیں وہ وہاں پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں اویس بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جب حمزہ بھائی اور یہ ساری ٹیم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ بریف کیا ہوگا۔ مزید میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے الفاظ میں بھی آپ ضرور بیان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ First of all, I'd like to welcome everybody and say thank you. Thank you, you guys have all made it here. I've told absolutely nobody anything, right? That's what everybody's talking about. Okay, why are we here? Why has Hamza called us for dinner? So I've called you all here to be happy. Happy. Right? So alhamdulillah, I've got a lot of happiness in my life, and I draw this happiness and this energy from my team, from the people, from my family, from my friends, all of you. You know, when I messaged Ali, for example, he made me very happy. To see Wajid bhai and to see all of you made me very happy, alhamdulillah. So last year in October, I visited Court, Kashmir Orphan Relief Trust. Court is an orphanage made for children that are extraordinary. You know, I was fortunate enough to be invited there to personally experience the lives of those children, to find happiness in Kashmir.
with my mother. I was traveling with my mother over there, and I had a very good time. So when Akhtar Bhai said to me that he's coming to America, I said, I want to introduce you to everybody, because he's somebody that has inspired me. And inshallah, not just me, I'm sure he's inspired thousands of other people, millions I would say, but you know, I have been infatuated with him, or whatever, you know, you want to call it, that he has something that I admire. I say, this is, you know, this makes me happy. The food here is going to be amazing, and the work here is going to be for humanity. So, you know, we understand the mix that we have in America, and it's amazing. I tell people a story about our Masjid Darul Islam, that how amazing that masjid is. I grew up in Pakistan, and I used to have, you know, things that I would leave my slippers outside the masjid, and then I would never find them. But Darul Islah is not the case. My children will go to the masjid where they will find their slippers, and if they forget their glasses, they'll get it back even after a month. Because I've experienced that. That's my experience with Darul Islah in America. Muslims in Islam is amazing. That's true. So, inshallah, I hope we can share and learn from each other, and I would love for Akhtar Bhai to communicate about, you know, this project to us, inshallah. अच्छे अल्फाज में आपको कोर्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। थोड़ी सी बात मैं कोर्ट के बारे में ये करना चाहूँगा कि आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने देखा होगा, 2005 में एक ज़लज़ला आया था जिसमें आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर जो वो इफेक्ट हुआ था, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद, वो 2005 के ज़लज़ले में तकरीबन आप कह सकते हैं कि वो तबाह हो गया था। तो तब चौधरी अख्तर साहब जो कि खुद भी ब्रिटिश हैं, ये वहाँ से आए थे कि वो उस जगह पे जाके कुछ सामान लोगों को दे आए। कोई 2-3 ट्रक इन्होंने दोस्तों ने इकट्ठे किए सामान के मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, उनको खैमे देंगे, खुराक देंगे, खाना देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो चौधरी अख्तर साहब 2005 में जब वहाँ पे जाते हैं, तो इनका यही कहना था कि मैंने जब वहाँ पे देखा कि अभी मैं इनको सामान दे के तो चला जाऊँगा वापस, लेकिन ये जो बच्चे अभी रो रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, उनके मकानों के मलबे के तले बैठे हैं, इनका कोई परेशानी हाल नहीं, इनका क्या बनेगा। तो तब इन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, इन बच्चों का मुझे कुछ करना। तो वहाँ से अख्तर साहब ने जो यतीम बच्चे थे, जो कोर्ट में बच्चे होते हैं वो यतीम होते हैं या उनके माँ और बाप दोनों नहीं होते, वो बच्चे अख्तर साहब ने वहाँ से लिए। उस वक्त 2005 के ज़लज़ले में 100 के करीब बच्चा वहाँ से लेके आए और किराए की एक बिल्डिंग मीरपुर में ली और उनको वहाँ पे रखा। उनका इंतज़ाम जो है वो शुरू कर दिया, उसमें रिहाइश थी, खाना पीना था, फिर स्कूलिंग थी और फिर बाकी कपड़े अखराजात, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ये इनको नहीं पता था ये कैसे होगा, अल्लाह ताला ने इनसे काम लेना था। 2005 को आज आप देखेंगे कितने साल गुजर गए। उसके बाद फिर ये कारवां चलता गया, इनके साथ लोग आते रहे, इनकी अनथक मेहनत से आज जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इदारा है कोर्ट, आप उसको सर्च करिएगा, गूगल पे करें, यूट्यूब पे करें, तो आपको हर एक चीज़ मैसर आ गई। और जहाँ पे उस इदारे में आप विज़िट करेंगे, ऐसा इंतज़ाम इवन कि मैं अपने घर में बच्चों को भी नहीं वो सहूलियात दे सकता, इतनी अच्छी वहाँ पे सहूलियात हैं बच्चों के लिए, खाना पीना, रिहाइश, तालीम। ईद पे जब वो शॉपिंग करते हैं, वो बच्चे खुद शॉपिंग करते हैं, उधर वहाँ पे बाजार लगाया जाता है, लोग कपड़े लेकर आते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से खिलौने लेंगे, शूज़ लेंगे, अपनी मर्जी का सब कुछ। पुराना कपड़ा नहीं पहना जाता वहाँ पे, पुरानी चीज़ें नहीं ली जाती और खाना वहाँ पे उधर ही पकता है, ताज़ा खाना पकता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोर्ट में 500 बच्चे हैं वहाँ पर, और 500 बच्चों का जो इंतज़ाम है वो या तो आप लोगों और जो चौधरी अख्तर साहब के साथी हैं, डोनर्स हैं, इंग्लैंड में बहुत लोग हेल्प करते हैं,
अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे इनके हाथ में रखा हुआ है। आगे चौधरी अख्तर साहब है, लेकिन जो उनके साथी हैं सारे, वो बड़ी मेहनत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया और एंड किया, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं उस पर कितना खर्चा आया था, कितने पैसे लगे थे, कहाँ कहाँ पे पैसे लगे हैं और मुकम्मल कितने में हुआ है। कोई भी बंदा जाएगा वहाँ पे वो देख सकता है, वेरी क्लियर है हर एक चीज़। और कोर्ट आप कह सकते हैं कि हम तो उसको आज़ाद कश्मीर का ब्रांड कहते हैं, लेकिन जो हम ओवरसीज़ अब बाहर आ गए, पाकिस्तान में भी कोर्ट जैसा कोई इदारा आपने नहीं देखा होगा। और एक इदारा कोर्ट जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, एक इदारा कोर्ट जो है वो सवाबी KPK में बना है। वहाँ पे भी अबाउट 200 स्टूडेंट्स और बच्चे वहाँ पे भी इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कोर्ट का एक मुख्तसर सा तारफ़ है जो बच्चों के हवाले से है। इसके अलावा कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के हज़ारों ऐसे काम हैं जो फलाही काम हैं, वो अगर मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। उसके लिए हमजा भाई बिल्कुल आप लोगों से राब्ते में भी रहेंगे, मज़ीद चीज़ें भी आपसे शेयर करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद जो बातें हैं, जो ब्रीफिंग है, वो हम चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब से सुने, आप लोग भी उनको सुनना चाहेंगे। इनका जो काम है, इनका जो टाइम है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि 2005 से हम इनके साथ एज अ वर्कर, एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि इस दौरान जो भी हमने काम किए, इसके अलावा वो उसका हमें शायद कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन ये काम ऐसा है शायद किसी जगह इस वक्त की वजह से हमारी नेकी लिखी जाए कि बच्चों के लिए हम कहीं निकले थे, किसी से बात की थी, कोई अपना टाइम स्पेंड किया था। तो अब बिला ताख़ीर मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट खमगा इम्तियाज़ चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार। Thank you everybody for giving us your time. Above all, as we all know, the most precious thing one has is time. वक्त जो होता है वो इंसान के लिए बहुत कीमती होता है। आज आपने जो वक्त दिया उसको मैं अपनी दिल की तहे गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। हम जानते हैं कि इस वक्त इस दौर में नफ्स और नफ्से की आलम में कहीं जाकर थोड़ा सा वक्त देना बहुत ही मुश्किल होता है। अयाज भाई ने जैसे बताया कि कोर्ट का जो मेन मंसूबा है, यतीम बच्चों का अदारा जो हमने स्टार्ट किया था 2005 में, हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ यतीम खाने का कॉन्सेप्ट बदला है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने यतीम खाना नहीं बनाया, हमने एक घर बनाया है। और मैं समझता हूँ कि एक पूरी दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट अब बन गया कि लोग इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अच्छे काम की कॉपी पेस्ट करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। 2 सेटअप्स हमारे हैं, लेकिन बहुत से और मंसूबे हैं। जैसे अभी हमने 1000 के करीब घर जो हमने सैलाब के बनाए, जो लास्ट मंथ ही हमने 250 घर सैलाब के बलोचिस्तान में मुकम्मल किए हैं। There are a lot of projects that we're doing on disability as well. But in Pakistan हमारे 2 जो काम है पूरे पाकिस्तान के लिए जिसकी अशद ज़रूरत है, वो तालीम और हेल्थ है। It's a huge shortage, huge gap. And unfortunately our governments have not been able to provide us that. सफ़र कौन कर रहा? 80% of our population, out of which एक तो वो गरीब लोग ही हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो मेरी नज़र में 10 साल पहले कोविड के दौरान वो नज़र में आया, जिसको सफ़ेद पोश कहते हैं, जो बेचारे मांग भी नहीं सकते। उनमें अल्लाह ना करे कि हम में से कोई भी सफ़ेद पोश हो सकता है किसी वक्त में, खुदा की लाठी बड़ी बड़ी बात होती है। So we're talking about the 80% of the population in Pakistan, जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ। अब क्योंकि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में होता हूँ, बोर्न एंड ब्रेड इन इंग्लैंड, लेकिन 19 साल हो गए सफ़र में, फील्ड में होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यकीन कीजिए जब हम फील्ड में जाते हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, और आप देखते हैं कि किसी घर में किसी गरीब बंदे का बच्चा छोटा सा या बच्ची बीमार पड़ा हुआ है और उसके पास 1000-1500 रुपये नहीं है कि उसकी दवाइयाँ ले सके, या उसकी वालिद या वालदा बीमार है, उसके पास 1500 रुपये नहीं है कि उसके चंद टेस्ट करवा सके।
उस इंसान के ऊपर क्या गुजरा होगा हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। यू नो इंसान होने के नाते वी हैव फीलिंग्स, और इंसान की बुनियादी चीज़ होती है वो एहसास होता है। अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो हमारे और जानवर के दरमियान में कुछ नहीं है। तो एहसास को मद्देनज़र रखते हुए वी थॉट कि अब हेल्थ के ऊपर हमने काम करना है। सो वी डिसाइडेड कि एक हॉस्पिटल बनाना, जिसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन क्योंकि बोर्ड को मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली नेवर हर्ड अबाउट बोर्ड बिफोर, अक्सर जब मैं नया ये नाम शुरू किया था कि 2005 के बाद ऑर्फन्स के ऊपर काम करना है तो नाम क्या दूँ, मैंने कहा कश्मीर, चले कश्मीर, ऑर्फन, नो प्रॉब्लम, रिलीफ ट्रस्ट। तो कुछ अर्से के बाद ये नाम मुझे चुभना शुरू हो गया, ऑर्फन्स ऑर्फन्स ऑर्फन्स। सो आई वांटेड टू चेंज इट, क्योंकि वी मार्केटेड सो लॉन्ग, तो हम इसको टोटली चेंज करना मुनासिब नहीं था। तो हमने इसको कंप्रेस कर लिया, KORT, यूनिसेफ। वी डोंट नो अ लॉट ऑफ अस व्हाट यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। लेकिन कोर्ट, जब अक्सर लोग बातें करते हैं कोर्ट में, अदारे में बैठे होते हैं और बीवी का कॉल आती है और कहाँ बैठे हैं, कह रहे मैं कोर्ट में बैठा हूँ। वो पूछती है कौन से केस है। सो कोर्ट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स टू इट, लेकिन बुनियादी हुआ कि इंसानियत के ऊपर काम करना। और कोर्ट के अलावा मैं कुछ नसीब हो के मुझे देखने को मौका मिला पाकिस्तान में। हमारे अलखिदमत के दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, खालिद साहब हैं। वी रिसेंटली एक्सचेंज सम वॉइस मैसेंजर कॉल्स, और आज मुझे एजाज़ हुआ आपसे मिलने का भी। पाकिस्तान में बहुत से अदारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, बहुत से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट। और ये तनकीद करना कि पाकिस्तान में करप्शन है, ये है, गलत है, वो माइनॉरिटी है। और अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ हैज़ पास्ड, यू नो, बुरा एक ही करता है लेकिन बदनाम सब हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम बोलता हूँ, पाकिस्तान में बहुत से अदारे अच्छा काम करते हैं। अगर वो ना हो, पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हो जाए। और मैं उनको खैराज तस्लीम पेश करता हूँ। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसको बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, लोगों के ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि इंसान कहता है व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्यों मैं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं आपको इसको क्या मिल रहा है, आप कितना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या रहे। खुदा की कसम एक वक्त था मैं सोच रहा हूँ यार आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, अल्लाह का शुक्र है कि, और मैं ये कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस। इसके लिए अपनी अना मारनी पड़ती है, किसी के आगे हाथ फैलाना किसी के लिए अना मारनी पड़ती है, बहुत मुश्किल काम है। और फिर लोग सोचते हैं हाँ इसका कमीशन जरूर होगा, ये कर रहा होगा, लेकिन अगेन उनकी अपनी सोच है। अगर इंसान को खुद अपने बारे में पता है वो क्या है, और उसको रब को पता है, तो वो क्या कहते हैं डज नॉट मैटर, बस दैट्स इट। वो मैं चाहता हूँ, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है कोर्ट के बारे में, मैं चाहूँगा उसको ज़रूर देखिएगा और have a look कि कोर्ट क्या है। When I said कि we'll change the concept of an orphanage, what that really is, so please वो प्ले कीजिएगा। सोच को बदलना है तो सोच का बदलना ज़रूरी है, और सोच को बदलने के लिए माहौल देना ज़रूरी है। अगर आप इन्वायरमेंट नहीं दे सकते तो माइंड कैसे चेंज होगा। तो हमने एक रिवर्स साइकोलॉजी की है, हमने माहौल दे दिया, अब उनका माइंड से चेंज हो जाएगा, माशरा अपने आप तब्दील हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ थिंग दैट यू चेंज ओवरनाइट, यू नो। अब यहाँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, और यहाँ कोई कलर कास्ट क्रीड नहीं है, यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं, और उनको भी हम क्रिसमस बनाते हैं विद देम। Until they are 16 and they are adults, we do not encourage or instigate them to change their religion or faith. When they are old enough, we put mindset in them whether we want to become a Muslim or not. Even if we don't, we respect that as well. और तो सबसे सेंसिटिव काम है, अक्सर हम हर हफ्ते 10 दिन के बाद we pick up small babies, abandoned babies, 1 घंटे के, चंद घंटों के बच्चों को पिक करते हैं रबिश बिन से, रोड के किनारे में, ऐसे ऐसी जगहों पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लोग पैदा करके फेंक देते हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं, मैंने आज तक जानने की कोशिश नहीं की। मैं ये जानता हूँ कि उन बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मफ़रत करे, उस अनायक उनको भी उनको नादरा ने इजाज़त दी थी कि इन बच्चों को शनाख्त देने की।
नादरा ने अटेंटिव रहने की। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट द सेम प्रिविलेज के नादरा ने इजाज़त दी है कि इन बच्चों को मैं नाम देता हूँ और अपना नाम देता हूँ। A lot of children here, माशाल्लाह लोग पूछते हैं कि आपने कितने, हकीकी मेरी अपनी एक ही बेटी है, she's 26 years, लेकिन जब पूछते हैं कि कितने बेटे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम 700-800 तो हैं। I'm so lucky, I'm so lucky. Anyway, sport, alhamdulillah now, it's something that being a Pakistani I'm so proud of. Yeah, Pakistan बहुत सी चीज़ें हैं जिनको नेगेटिव लोग तासर देते हैं और उसको फिर मिला देते हैं, लेकिन अच्छे काम भी पाकिस्तान में हो रहे हैं जो हम प्रमोट नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ खिदमत के मेरे भाई बैठे हैं, अघोष एक और अदारा हमारे पाकिस्तान में डूइंग वेरी सिमिलर वर्क ऑल ओवर पाकिस्तान, और स्वाबी में भी एक बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा सेटअप आई नो। सो वी आर वर्किंग टुगेदर, अ लॉट ऑफ चीज़ें दैट वी लर्न। इस सेक्टर में सही माना में कोई कंपटीशन नहीं है, इट्स नॉट अ कंपेटिटिव बिजनेस टू बी। यस, कारोबार ज़रूर है, हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन खुदा के साथ कर रहे हैं, ये किसी बंदे या ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। अब यहाँ के बच्चे जो हैं, इतने बच्चे जब आए थे माशाल्लाह बड़े हो गए, प्रोफेशनल फील्ड में चले गए, शादियाँ हो गई, मैं नाना और दादा भी बन गया मल्टीपल टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो। और वो बच्चे अब इस अदारे को चला रहे हैं। हमारा जो स्वाबी का कॉम्प्लेक्स है, हमारा अपना बच्चा छोटा सा जो आया था वो वहाँ का मैनेजर है, चला रहा है। अब हमारी बच्चियाँ जो है टीचर्स बन गई है, हमारी बच्चियाँ मैनेजिंग में आ गई हैं, HR में आ गई हैं। बच्चे जो है माशाल्लाह जो ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल नहीं है वो प्लम्बर बन गए, इलेक्ट्रिशियन बन गए, एंड दे वर्किंग ऑन द पे रोल ऑफ कोड। तो मैं चाहूँगा कि वो जो बच्चे हैं उनकी ज़बानी सुनिएगा कि व्हाट गॉड हैज डन फॉर देम। प्लीज लिसन टू दिस। बेटी की शादी हुई है और उसको रुखसत किया है बड़े अच्छे तरीके से। जहेज तो देना चाहिए बेटियों को देते हैं, जो भी ज़रूरियात है देते हैं, फिर उसके बाद भी इश्यूज आते हैं घरों में, पता बेटियों के, और वापस हमारे पास ही आते हैं, तो वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता। सो इट्स नॉट अप टू द एज ऑफ 16-17, इट इज़ फॉर लाइफ, इट इज़ फॉर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह वी सो लकी। बहुत से लोग इस कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जितने लोग आकर विजिट करते हैं, बहुत से हमारे खूबसूरत इलाके नीलम वगैरह, लेकिन जितने कोर्ट को आकर लोग विजिट करते हैं कश्मीर में कहीं और जगह नहीं जाते हैं। ओवर 1800 to 2000 विजिटर्स एवरी मंथ कम टू कोर्ट हियर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग हैं हमारे जो प्रीवियस एम्बेसडर थे ऑफ पाकिस्तान, मसूद खान साहब, ही president of Azad Kashmir from about few years ago, and he's also patron and chief of court as well. बहुत से लोग कोर्ट में आते हैं, विजिट करते हैं, और until you visit court, हकीकत में बता रहा हूँ, मैं जहाँ बैठ कर I can talk to you till the cows come home, लेकिन until you go and visit court, you will not understand. ये मेरी बात याद रखिएगा। I hope and pray that अल्लाह ताला आपको मौका दे पाकिस्तान आने का, और you do visit court, will be an honor to have you. लेकिन जब भी इंसान कोर्ट में आता है ना, वो कहता है यार जो आपने दिखाया बताया इज नथिंग लाइक इट, इज समथिंग डिफरेंट। तो चंद लोग जो विजिट करके आए, maybe you recognize one or two of them. Let's hear what they have to say about a bigger project, a hospital, a much needed hospital throughout Pakistan. But we started with the first one in the city of Mirpur in Azad Kashmir, a 500-bed hospital, which is going to provide free healthcare to the needy. There is not going to be a cash counter for the needy. With medical college, dental college, and a nursing college. The land has been given to us, as always, by the government of Azad Kashmir last year. We started the boundary wall and site offices, which are ready now. Before the end of this month, inshallah, we're going to start the work on the main hospital. It's a 3-year project. With about $36 million hospital. Now, when we say $36 million, you're thinking, oh my God, it's a lot of money. But it's not. It's a loose change for some people. These jobs and this work is not in my capacity or your capacity. ये अल्लाह इसको पूरा करता है, और अल्लाह ही इसको पूरा करेगा। हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों है पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में? चंद लोग हैं आज़ाद कश्मीर को जानते हैं कि हमारा एक लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया है इंडिया के साथ, भारत के साथ।
2-2.5 सालों से तो अभी सीज फायर हुआ हुआ, लेकिन उससे पहले जब गोलाबारी होती थी तो हमारे लोगों को जब वो बर्न्स होती थी, जल जाते थे और वैसे नेचुरल किसी इंसिडेंट से जल जाते थे, हमारे पास कोई बर्न सेंटर नहीं था आज़ाद कश्मीर में और ना है, सबसे करीबी खाई का है और वहाँ भी जाकर आपको वेट करना पड़ता है और कई लाख रुपए देने के बाद आपको इलाज होता है। हमने आज़ाद कश्मीर का पहला बर्न सेंटर बना रहे हैं, 6 माह के अंदर वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा पहला हेल्थ का प्रोजेक्ट था, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से जब ये इंसिडेंट्स होते हैं हमारे लिए एक ह्यूज टास्क होता है कि उनको शिफ्ट कहाँ करें। We don't have an infrastructure in Azad Kashmir that provides you quality health care other than the nearest Rawalpindi. तो क्यों आज़ाद कश्मीर को जरूरत है? आज़ाद कश्मीर में इस हॉस्पिटल की प्लीज ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा सुने, लोगों की कुछ फरियादें हैं वो कि आपकी कैपेसिटी में है, आप चाहेंगे कि मैं करना चाहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें हमारे पास में नहीं होती। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इट मीन्स कि आपके पास वसाइल ना हो पाकिस्तान में और आपकी छोटी सी बच्ची हो और उसके लिए आप क्या करेंगे टू सेव अ लाइफ। मेरी अपने इदारे की एक छोटी सी बच्ची 3 साल की मेरे पास आई थी, लास्ट ईयर शी वाज 13 years old, नेम इज ज़ारा। ज़ारा अचानक शी फेल्ट इल, डिफरेंट हॉस्पिटल जाकर मैं चेक करवा रहा हूँ, उसकी कंडीशन डिटेरिएट हो रही है, बिल आखिर उसको डायग्नोज हुआ डिसऑर्डर जो दुनिया में 1% से कम लोगों को है, लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन पीपल इन द वर्ल्ड। उसकी पेट की जितनी आंतें हैं वो सीमेंट बन चुकी है, उसका वजन 13 kg आ गया। हर जगह हमने ट्राई कर लिया, कहीं सुराख नहीं मिल रहा था। आखिर में हमने रुक किया पिंडी इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल में। शिफा इंटरनेशनल इज अ ह्यूज बिजनेस और हम कश्मीरी जो है उनके लिए एक ATM है। वहाँ जाकर क्योंकि मैं एक बाप हूँ, मेरी बेटी है, तो मैंने तो ट्राई करनी है, दुबे बंदे को एक टंकी का सहारा होता है। वहाँ जाकर उन्होंने आस उम्मीद दी कि हमारे पास इंशाल्लाह उम्मीद रखें हम कुछ कर लेंगे। ठीक है जी, एडमिट कर लिया। एक हफ्ता गुजर गया, 7-8 लाख रुपए लगा दिए, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, ये सैंपल वो सैंपल, नो प्रॉब्लम। दूसरा हफ्ता गुजर गया, ये टेस्ट वो टेस्ट, खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये वो। अब उस बेचारी को एक नाक में बैग लगा हुआ था, उसको TPN लगी हुई थी और जो खुराक पेट में नहीं जा रही थी और शी वाज डिटेरिएटिंग। 3 हफ्ते गुजर गए सही, हमने 3 वीक्स डॉक्टर साहब क्या करें आप? It's been 3 weeks now, तकरीबन 35-40 लाख रुपए लगा चुके हैं और आगे क्या है? नहीं बेटा बहस, ये हो रहा वो हो रहा। मुझे अचानक इंग्लैंड जाना पड़ा। आज लेफ्ट इंग्लैंड और इनका एक स्ट्रैटेजी है, टैक्टिक दे प्ले दिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स अनफॉर्चुनेटली। वो पहले जाकर देखते हैं, जब पेशेंट जाता ना हम कश्मीर में से खासतौर से, तो देखते हैं कि पहले जायजा लगाओ कि इसके पास कितना माल है, उसके मुताबिक आपका इलाज करेंगे। और जब आपका माल खत्म होने को आ रहा है या आप सवाल करना शुरू कर देते ना, फिर वो बहाना ढूंढते हैं आपको कैसे बात निकालें। जब मैं इंग्लैंड चला गया, दूसरे दिन कॉल आती है, डॉक्टर कहता है हमें छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। इंसिडेंटली मैं इंग्लैंड हूँ, कल भी नहीं, हमने आज रात को टीम हमारी बैठी है तो वो करनी पड़ती है, बिस्मिल्लाह करें। उन्होंने सर्जरी की, 2 घंटे के बाद कॉल किया मुझे, इंग्लैंड के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। कह रहा साहब हम सॉरी बेटा राइट नाउ 50 लाख रुपए लगा चुके थे। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब हमने इसको ओपन किया और वी थॉट समथिंग एल्स और वी कांट डू नथिंग। और आई वाज ऑन द फोन कॉल और 3 कंसल्टेंट्स थे। मैंने कहा अब उनको पता चल गया कि ये यतीम खाने की बेटी है। डॉक्टर साहब मेरे लिए क्या होगा? वो आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, वेस्ट ना करें, इसको TPN उतार दें और हफ्ते के अंदर ये डिहाइड्रेट हो जाएगी और चली जाएगी। मैंने सवाल किया डॉक्टर साहब अगर आपकी बेटी हो तो आप क्या करें? He could not reply. I caught the next flight, आ गया हूँ शिफा से, मैंने बेटी को डिस्चार्ज कर लिया।
55 लाख रुपया तकरीबन हमने लगाया, मीरपुर लेकर आए। मेरे दोस्त का एक छोटा सा बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ रखा, और ऊपर से खुदा से ही फरियाद कर रहे थे और उसी से रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर आखिर आगा खान ने, मैं एक डॉक्टर मिला लाहौर में, 2 कंसल्टेंट्स मिले रेफरेंस से, उन्होंने कहा we'll have to come to Islamabad and we'll have to open a room। जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि उसकी ब्रेड की जो 2 इंडस्ट्रीज हैं, नॉट अ मेडिकल स्पेशलिस्ट के, वन इज ओके, द अदर वन वी डोंट नो until we open a room। मैंने कहा कि we open a room, he said one of the intestines is I don't know 60% 70% damaged, we have to put some sort of a medical terms or something, extension लगानी पड़ती है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो किया और ज़ारा की जान आउट ऑफ डेंजर हो गई। इस वक्त तक हम 1 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। फिर उसका क्लोस्ट्री बैग लगा हुआ था, वो कह रहे थे कि जब तक इसका वजन वेट 32 kg पे नहीं आता हम इसका क्लोस्ट्री बैग नहीं उतार सकते। 3 हफ्ते पहले की बात है, 32 kg उसका वजन हुआ, क्लोस्ट्री बैग उतर गया, स्टिचेस लगे 14 दिन के बाद, 3 दिन पहले की बात है, उसके स्टिचेस भी हो गए। ज़ारा का वेट इस वक्त 35 kg है। 1 करोड़ रुपए मैं लगा चुका हूँ और बच्ची की जान। आप मुझे बताएं कि गरीब बंदा 1 करोड़ कहाँ से लाएगा? जिस इंसान के पास इस दौर में एक वक्त का खाना नहीं मिलता, वो 1 करोड़ कहाँ से लाएगा? घर में अगर एक वक्त का खाना ना मिले, 1 दिन का ना मिले, 2 दिन का ना मिले, पानी पे गुजारा कर लेंगे, रोटी सूटी खा लेंगे, लेकिन आपकी बेटी छोटी सी, बेटा या वालिद या वालदा बीमार है और आप इतने बेबस हैं कि आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, इतना माफिया है। डॉक्टर के पास जाएंगे, सरकारी DHQs में वो क्या होता है कि डॉक्टर्स सुबह 3 घंटे बैठते हैं, शाम को अपनी क्लिनिक होती है, उनके पास जाएंगे, कहेंगे हाँ शाम को मेरी क्लिनिक में आ जाए, इलाज उधर है। वहाँ जाकर आपको 20 टेस्ट करवाने को देंगे, क्योंकि जो क्लिनिक्स हैं वहाँ भी उनका कमीशन लगा होता है। सो इट्स अ ह्यूज माफिया। ये गरीब कहाँ जाए? मैं चाहूँगा कि ज़ारा की कहानी सुनिए। दिस इज ज़ारा and I want you to hear from Zara that what difference people like you have made with Zara। मैंने नहीं किया, करने वाले तो खुदा की जात है, लेकिन ये हमारे डोनर्स का पैसा लगा, मेरा जाती पैसा। So please, बहुत खुश नसीब है। I am born and bred in England। आप लोग हम अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी का गुजारें, तो क्यों ना गुजारें, लेकिन हमें अपने उस वतन में ऐसी लाखों ज़ारा के बारे में सोचना, हम क्या कर सकते हैं जो हमारे बस में है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, it's not just about money, it's about ideas, it's about suggestions, it's about collaboration, it's about time। बहुत सी चीज़ें इंसान दे सकता है। सिर्फ चैरिटी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। We're not just asking for money, we're asking for people to unite behind causes like this, because our country needs us। हम दुनिया को बदलने के लिए नहीं निकले, और ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। हाँ, अगर किसी इंसान की जिंदगी हम बदल सकते हैं, गोया एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना, हमने अपना फर्ज जरूर निभाया। मैं आपको अपनी थोड़ी सी दास्तान सुना दूं। मेरी शादी के 10 साल के बाद खुदा ने मुझे औलाद दी। मेरी बेटी जब हुई और मेरी एरिया डिसेबल हो गई, she was diagnosed with muscular dystrophy। डायग्नोज के 6-7 माह के अंदर वो व्हील चेयर बाउंड हो गई। For 28 years, my wife was in a wheelchair. I lost her assistant use. She was my pillar, she was my anchor, she was my strength, she still is। 28 years से wheelchairs में, और we were married for 38 years। मेरी अपनी एक औलाद है बायोलॉजिकली। इस वक्त राइट नाउ शी इज क्वालिफाइड लॉयर इन इंग्लैंड। और जब मेरी वाइफ व्हील चेयर में थी और पाकिस्तान में हमने 4 साल गुजारे इस काम के लिए, और एक ऐसे शहर में जब आप पाकिस्तान इरादा किया शिफ्ट करने का,
तो जिस शहर में हम रहते हैं उसमें एक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसकी बाथरूम का दरवाजा इतना चौड़ा हो कि अब व्हील चेयर पर लेके जाए। मैंने सोचा कि अगर मेरी वाइफ बीमार होती तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा, बट आफ्टर लूजिंग माई वाइफ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुदा से कि गिला शिकवा, लेकिन अपनों को जो खोने का गम होता है ना, इट इज़ फॉर लाइफ। और अक्सर मैं मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हम अक्सर अपने स्पाउसेस की कदर नहीं करते और उनको अप्रिशिएट नहीं करते, और कभी कभी हम दोस्तों के दरमियान में उनकी तारीफ करने में शर्मिंदगी उठाते हैं कि ऐसा ना कोई दोस्त ये कहें कि यार बीवी के गले लगा हुआ है। ऐसा ना कीजिए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। माई वाइफ वॉज माई स्ट्रेंथ, माई वाइफ वॉज माई पिलर, शी वॉज माई एंकर, और जितना ये काम हुआ ये मैंने नहीं किया, उनकी व्हील चेयर में होकर जो मुझे सपोर्ट मिली थी, विदाउट दैट मेरे लिए काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं 100% काम करता था, अब मुझे 200% करना पड़ा। 100% अपनी मिसेज का भी हिस्सा मुझे डालना है। हॉस्पिटल जो बनाने जा रहे हैं मिरपुर में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कौन सा हॉस्पिटल है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको। ये आखिरी वीडियो है, how we can together make a difference to humanity. Tomorrow we're in Washington and then I'll fly back to Pakistan. Hopefully, end of this year, our intention is to do a couple of fundraising events, and we're gonna, inshallah, get some ideas and suggestions how we can make that effective and fruitful. But that is at a later stage. So the whole idea was today to get to know a few people from the local community, and I really want to thank Hamza bhai, above all, Brother Saqib and Brother Awais, and especially your families, for giving you time away from them to spend with us. And above, secondly, all of you and our mother like Auntie Dolly, all the way from New York and Toronto, who's come over to support us. Auntie, thank you very much for coming all the way. You're an inspiration for a lot of us. Alhamdulillah, Allah give you a long life. And all the brothers and sisters here, please, thank you very much for being here tonight and for giving us your time. वक्त जो है ना, वक्त हम खरीद नहीं सकते, वक्त अनमोल होता है। वक्त देकर आपने जिंदगी का कैसा हिस्सा दिया ना, इसकी मैं सारी जिंदगी को याद रखूँगा। वो अपने दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो भी हम कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा काम हम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अल्लाह ताला हमारी ये दुनिया और आने वाली दुनिया दुरुस्त कर दे। हम लोग बहुत खुश नसीब है, खुदा ने हमें मौका दिया ऐसे काम करने के, वरना पता नहीं कौन से उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मोहम्मद औरंगज़ेब, जम्मू कश्मीर टीवी, न्यूयॉर्क, अमेरिका।